Hi, good morning. Good morning, ma'am. Sorry for a bit of delay. Actually, I didn't realize the Zoom had gone Good morning, into an ma'am. update. It had Good gone. morning, ma'am. Thank you. Good morning. Good morning, everyone. Beautiful Sunday, beautiful weather. It still looks like dark outside. Rainy. So good. We have a new updated Zoom here. I didn't realize that the Zoom was updating. So that's why it wasn't starting the meeting. और फिर वैसे भी आज बहुत important day है ना, important chapter, the money magnet. It's called धन का चुंबक होना. किस तरह से you can become a magnet to money. Wherever you go, you magnetize money to you. Okay, and that's how beautiful this chapter is, because इससे हमारा subconscious mind के थोड़े से pattern rewire होंगे. Because पैसे को लेके हमेशा ये हिच होती है, बड़े bills हमको pay करने में problem होती है. हम चीजों के बारे में ऐसे बोलते हैं बहुत ही एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा वर्थ भी नहीं है, इस तरह की चीजें, बिकॉज ऑफ विच ऑफ कोर्स द मनी डज नॉट लाइक टू स्टे विद अस, बिकॉज वी बीन बिरेटिंग इट लाइक दैट, बोल बोल के वो बहुत महंगा है, ये बहुत महंगा है. पैसे देते वक्त हमको कुछ ना कुछ लाइक जब भी बिग बिल्स होते हैं, so whenever we give money, we don't have a very good energy. So when we attach negative energy to the money, money starts slipping away from our life. Okay, that is what we are going to learn today. So it's a beautiful chapter. Image हम देखते हैं क्या है. So in the image we can see is बहुत सारा पैसा है और नीचे एक मैग्नेट है यहाँ पे, इधर डाउन बिलो, एंड सारा पैसा वो मैग्नेट की तरफ. So that magnet is you, and all the money in the world is coming from the universe. Can you see? It is coming from nowhere. ऊपर से कहीं से आ रहा है. So the universe is bringing that money to you because आप धन का चुंबक है. और कैसे ये पैसा बढ़ता जाता है, अब कुछ भी उम्र हो, कुछ भी हो. मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो 70, 75 years, 80 years में उन्होंने ये प्रैक्टिसेस शुरू करी थी. और जब ये प्रैक्टिसेस करी तो उनका ऐसा घर से छोटा सा बिजनेस इतना बड़ा हो गया, और एक्चुअली वो मनी मैग्नेट बन गया, क्योंकि पैसा तो कहीं से भी आ सकता है. जरूरी नहीं है कि वो कमाया ही जाए. इसीलिए मैं बोलती हूँ अर्न वर्ड मत यूज करो, रिसीव करो. आई एम रिसीविंग मनी फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. ओके, नॉट आई एम अर्निंग. अर्निंग के साथ में एक एफर्ट अटैच्ड होता है. ओके, सो दैट्स हाउ इट इज. लेट्स रीड द चैप्टर. अनु. Yes, ma'am. Yeah, please start. Day 9, the money magnet. Quote, it is only with gratitude that life becomes rich. Unquote, by Dietrich Bonhoeffer, Lutheran pastor. Gratitude is riches and complaint is poverty. It's the golden rule of your whole life, whether it's your health, job, relationships, or money. The more grateful you can be for the money you have, even if you don't have very much, the more riches you will receive. And the more you complain about money, the poorer you will become. Today's magical practice turns one of the biggest reasons people complain about money into an act of gratitude. And so it has double the power to change the circumstances of your money. You will be replacing a complaint which makes you poorer with gratitude, which magically brings you riches. Most people wouldn't think they complain about money. But if there is a lack of money in their life, they are complaining without realizing it. Complaining happens to people's thoughts as well as their words. And the most people aren't aware of the many thoughts in their head. Any complaining, negative, jealous, or worried thoughts or words about money are literally creating poverty. And of course, the biggest complaint comes when money has to be paid out. If you don't have enough money, paying your bills can be one of the most difficult things to do.
It can seem like there is a greater stream of bills than there is money to pay them. But if you complain about your bills, then what you are really doing is complaining about money, and complaining keeps you in poverty. If you don't have enough money, the last thing you would normally do is feel grateful for your bills. But in fact, that's exactly that you have to do to receive more money in your life. To have a rich life, you must be grateful for everything to do with money. And begrudging your bills is not being grateful. You must do the exact opposite, which is to be grateful for the goods or services you have received from those who build you. It is such a simple thing to do, but it will have a monumental effect on the money in your life. You will literally become a money magnet. To be grateful for a bill, think about how much you have benefited from the service or goods on the bill. If it's payment for rent or a mortgage, be grateful that you have a home and you are living in it. What if the only way you could live in a home was by saving up all the money and paying cash for it? What if there was no such thing as lending institutions or places to rent? Most of us would be living on the streets. So be grateful to the lending institutions or your landlord because they have made it possible for you to live in a home or apartment. If you are paying a bill for gas or electricity, think about the heating or cooling you received, the hot showers, and every appliance you were able to use because of the service. If you are paying a phone or internet bill, imagine how difficult your life would be if you had to travel vast distances to talk to each person individually. Think about how many times you have been able to call family and friends, send and receive emails, or access information instantly through the internet because of your service provider. All of these remarkable services are at your fingertips. So be grateful for them and be grateful that the companies trust you by providing their services before you have paid for them. Ever since I discovered. I think, Anu, we'll just break it down here for a bit. Okay, so इसमें सबसे पहली चीज ये आज का पूरा चैप्टर ना बिल्स के बारे में है, और बिल स्पेशली जब हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है, इनफ नहीं है, और आपका सपोज इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया 22,000 रुपीज. ओके, नॉर्मली आपका आता है समवेयर लाइक 10-11 टाइप्स. समर्स में नॉर्मली थोड़े से ज्यादा बिल्स आते हैं बिकॉज सबके एसीज चल रहे होते हैं और ऑल द एसीज आर वर्किंग इन द हाउस. सो अगर ऐसा कुछ है तो whenever we pay anything, you know, कई बार होता है आप एक नॉर्मल स्टोर गए हो, आपने पेयर ऑफ शूज खरीदे हैं, आपका बजट था, यू रियली वांटेड सम नाइस शूज बिकॉज आपको ये था कि मुझे फॉर्मल अच्छे से शूज चाहिए, एंड यू थॉट दैट ओके मेरा बजट होगा लाइक 3,000 तक के शूज आई कैन बाय. ठीक है, अब आप गए वहां पे और वो शू आपको बहुत पसंद आया और वो था 4,500 रुपीज या 5,000, आपके बजट से वो 2,000 एक्स्ट्रा है. ठीक है, तो अब आपको फॉर अ मोमेंट ऐसा लगेगा कि मतलब ज्यादा खर्चा हो गया, मन तो बहुत कर रहा है लेने का क्योंकि बहुत ही सुंदर पेयर ऑफ शूज है, लेकिन पैसे देते वक्त लग रहा है कि मतलब 5,000 रुपए देने पड़ रहे हैं, मतलब इसमें मैं ये खरीद लेती, मैं वो खरीद लेती, 3,000 मैंने सोचा था, एक्सपेंसिव तो है चलो बट कोई बात नहीं, नहीं सोचती इस बारे में, यू नो शूज तो बहुत अच्छे हैं ना. सो इस तरह से हमारे मन में इमीडिएटली लैक और डेफिशिएंसी का एनर्जी आ जाती है, राइट. और ये बहुत कॉमन होता है बिकॉज पैसे हम पूरे टाइम खर्च कर रहे होते हैं. आई मीन वी आर गोइंग समटाइम्स टू बाय फ्रूट्स, तो हमने फ्रूट्स खरीदे, सपोज आप एप्पल भी खरीद रहे हो, नॉर्मली आप एप्पल पहले खरीदते थे मे बी 80-90 रुपीज अ किलो,
और इस बार आपने 160 बोल रहा है, उससे बार्गेन करा करा के आपने 140 का लिया है ना, तो 140 के खरीदे, बट आपको लग रहा है कि चलो एप्पल है बहुत अच्छे बट बिल्कुल ही डबल द प्राइस पे मिल रहे हैं, या 60-70% ज्यादा मैंने खर्चा किया है, तो उस वक्त मन में फिर ये आ जाता है, अरे ये तो महंगे, अरे ये तो इतना ज्यादा है। ठीक है, फिर इस तरह से बिल्स नॉन स्टॉप हमारे पास आ रहे हैं। कभी कभी फोन का बिल आता है, तो फोन का बिल आता है तो उस वक्त आप मतलब ऑब्वियसली कभी ज्यादा आ जाता है, देन अगेन दिस थिंग कम्स टू योर हेड दैट अरे ये तो बहुत महंगा आया है, हमेशा तो 900 रुपीज का होता है, इस बार ये 1500 कैसे आ गया। सो इस तरह से जब भी हमको स्पेंडिंग में जब एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने होते हैं, एकदम से हमारी नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, और वो एनर्जी पैसे से एसोसिएटेड होती है, जिसके कारण हमारा पैसा कभी बढ़ता नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हमको वी विल नीड टू रीफ्रेम एंड रीप्रोग्राम अपने सबकॉन्शियस माइंड को, कि जब भी पैसे दे रहे हैं उस वक्त हमारी एनर्जी बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए, एंड हमको वो पैसे को बहुत ब्लेस करके देना चाहिए। स्पेशली जब हम अपने स्टाफ को पैसे दे रहे होते हैं, डोमेस्टिक हेल्पर्स, पीपल हु आर स्वीपिंग, मॉपिंग, क्लीनिंग योर हाउस, अगर उन्होंने बहुत छुट्टियां करी हुई होती है तो हमको बहुत वो लगता है कि पूरे महीने की मैं सैलरी दे रही हूँ इनको, इतनी ज्यादा तो ये लोग छुट्टियां करते हैं। ठीक है, तो इमिजिएटली ये आ जाता है कि देखो मैं तुमको पूरी सैलरी दे रही हूँ, तुमने इतनी छुट्टी की है, तो उस वक्त मत बोलो। जब पैसे दो तो उसके अंदर बहुत ब्लेसिंग डाल के दो कि ये पैसे जा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि वो पर्सन लाई करता है, उसमें विजडम नहीं है, सपोज आपको लगता है आपके घर पे जो सफाई करते हैं उनमें वो झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के छुट्टी लेते हैं, उनमें विजडम नहीं है, मतलब वाइजली नहीं अपने आप को कंडक्ट करते, इमेच्योर है, या जो भी चीज अगर आपको लगती है, ठीक है, तो पैसे देते वक्त आप ब्लेस करो ये वाली चीज को, दैट वो बहुत खुश हो, बहुत वाइज हो जाए और बहुत ट्रूथफुल इंसान बन जाए, जिससे कि सारे उनकी जिंदगी में लोग भी वैसे ही मिले उनको, है ना। तो आप ये ब्लेस करके दे दो, ब्लेसिंग को पैसे के साथ एसोसिएट करो जब पे कर रहे हो। बिल्कुल भी कंप्लेन मत डालो पैसे देते वक्त किसी को भी, कितनी भी महंगी चीज हो, अगर नहीं है तो मत लो। मैंने इब्राहिम हिक्स की बुक में ही पढ़ा है कि वो हमेशा बोलते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि किसी स्टोर में बहुत एक्सपेंसिव सामान है और उस वक्त आपका इतना बजट नहीं है, तो आप उस स्टोर में घुसो ही मत, क्योंकि आपको हर चीज देखोगे, वाओ सच अ नाइस शर्ट, ओ बट इट इज सो मेनी डॉलर्स, ओके वाओ सच नाइस शूज। सो उसमें यही है, डोंट गो, बट एंड इवन इफ यू गो यू डेवलप लव टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो स्टोर में रखा हुआ है, दैट वाओ दिस इज सो ब्यूटिफुल। डोंट से दैट नहीं मैं नहीं खरीद पा रही क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, सेकेंड सेंटेंस नहीं आना चाहिए। ठीक है, आप उसको लव एंड अप्रिसिएशन देते हो, वो आपके घर में आ जाएगा। इट इज एज इजी एज दैट। सो बस यही है कि आप पैसे के साथ हमको बिल्कुल कंप्लेनिंग जोन में नहीं लेना है, पहली चीज ये है। ठीक है, दूसरी चीज जो अभी तक आपने पढ़ी है वो ये है दैट यू नो लाइक जब भी किसी चीज का बिल पे कर रहे हो तो उस बिल से, उस चीज से जो सर्विस आपको मिली है, आप उसके लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हो। जैसे अगर आप फोन का बिल दे रहे हो तो फोन के बिना तो हमारा गुजारा ही नहीं है बिल्कुल। ठीक है, पीपल आर हुक्ड ऑन टू फोन ऑल द टाइम, पीपल आर वॉचिंग मूवीज ऑन द फोन, पीपल आर टॉकिंग ऑन द फोन, ऑफिस का काम फोन पे, पूरे बिजनेस लोगों के फोन पे चलते हैं। तो जब फोन का बिल दे रहे हो तो इन सब चीजों के लिए थैंक यू, पैसे को छोड़ो अभी। ठीक है, पैसा तो देते वक्त सो थैंक यू फॉर द मनी दैट यू पेइंग, you know, because I work on the phone, I'm like I run my business through the phone, because I talk to my family and friends through the phone, because I use so much of WhatsApp applications, cab bookings on the phone, है ना, कितने कैब कितने applications होते हैं फोन पे, I listen to music on the phone, I listen to YouTube on the phone। तो उससे क्या उपयोग आपको हो रहा है ना, आप इसके बारे में सोचो, इसके पैसे को लेके नहीं, अपने आप वो पैसे की एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। सिमिलरली अगर आपने कोई मॉर्गेज लिया हुआ है अपना घर, मतलब घर को आपने लोन लिया हुआ है, होम लोन, कार लोन, दिस लोन दैट लोन, जो भी अगर लोन लिया हुआ है, और अगर आपका होम लोन के पैसे जा रहे हैं, ठीक है, तो बहुत अप्रिशिएट हो जाओ कि इतना बढ़िया बैंक और इतना बढ़िया सिस्टम कि उन्होंने आपको 80 लाख रुपीस दे दिए एडवांस में। वो आपको जानते भी नहीं है। हम दे सकते हैं किसी को 80 लाख रुपीस टू एन अननोन पर्सन? नहीं दे सकते ना। उन्होंने, हम तो उनके लिए अननोन ही है, ठीक है, उन्होंने, बैंक ने हमको 80 लाख रुपीस, 1 करोड़ रुपीस इतना एडवांस में दे दिया, ट्रस्टिंग अस। ओके,
और हमने उसकी वजह से घर खरीदा है, जो अगर हम सेव कर करके खरीदते तो सोचो आपको कितने साल लग जाते, है ना। सो उतनी सेविंग्स करके फिर घर खरीदो। सो पहले ही आपने घर खरीद दिया क्योंकि आपको सारे पैसे मिल गए बैंक से इतनी शुरू शुरू में ही। एंड दिस इज द रीजन, यू नो, लाइक यू रियली नीड टू बी ग्रेटफुल, स्पेशली जब लोन के पैसे जा रहे हैं। सो इस तरह से हमको, अगर कार लोन लिया है, आप सोचो कि इतनी एक्सपेंसिव कार आपको चाहिए थी, अगर आप सोचते कि आई विल सेव दैट मनी और मैं कैश डाउन पे वो कार खरीदूंगा, ठीक है, तो सोचो आप वो उतना पैसा सेव करने में कितना टाइम लगता, और कहीं कहीं से बचा बचा के आपको वो पैसे जोड़ने पड़ते, और शायद उसमें और 10 साल लग जाता, है ना। तब तक बहुत सारी नई कार्स आ जाती, फिर आपको ये लगेगा कि अरे अब तो ये वाली कार मुझे खरीदनी थी, अब तो इतने सारे न्यू कार्स मार्केट में आ गए, व्हाई डोंट आई बाय दैट, ठीक है। फिर पता लगता है कि नहीं नहीं, वो कार तो उससे भी और 20 लाख महंगी है। फिर ऐसे तो कभी हो ही नहीं पाएगा ना, फिर हम तो गाड़ी खरीद ही नहीं पाएंगे अगर हम एक एक पैसा जोड़ जोड़ के खरीद ले। तो इससे अच्छा वी जस्ट टेक अ कार लोन, राइट, एंड यू बाय योर कार ऑफ योर ड्रीम्स टुडे ओनली। अब वो कार लोन वाली कंपनी आपको पूरा की पूरा लोन दे रही है, 80-90% आजकल लोन मिल जाता है, ठीक है, तो पूरा कंपनी दे रही है आपको, और आप इतनी लग्जूरियसली अपनी गाड़ी को यूज कर रहे हो, इधर उधर जा रहे हो। तो जब आपका कार लोन का पैसा डेबिट होगा, अगर ऑटो डेबिट है या जैसे भी हो रहा है, तो उस वक्त बहुत अप्रिसिएशन के मोड में रहो, बहुत ग्रैटिट्यूड में अबाउट द कार दैट यू यूजिंग, कि इतनी आराम से मैं गाड़ी से इधर उधर जा पाती हूँ, इतना अच्छा म्यूजिक है, माई कार रन सो स्मूथ, आई हैव फ्रीडम टू ट्रैवल, आई हैव फ्रीडम टू गो वेरेवर आई वांट टू गो, you know, the car, this is so good, beautiful interiors, I really love it, it has given me mobility। so सारी अच्छी चीजें सोचो उस कार की वजह से। ड्रेस के पैसे दिए आपने, कुछ ऑनलाइन ऑर्डर मंगवाया है, जब वो पैसे दे रहे हो तो उस वक्त वो सामान जो मंगवाया है आपने, जैसे ग्रोसरीज मंगवाई है अगर किसी ग्रोसरी ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर से, तो आप उसके लिए बहुत ग्रेटफुल रहो, दैट वाओ, यू नो, लाइक आई कुड गेट टोमेटो केचप, आई कुड गेट दिस, आई कुड गेट सम पास्ता, आई कुड गेट व्हाटएवर, आई कुड गेट सम आटा, और व्हाटएवर जो आपने अपना मंगवाया हुआ है, उस चीज के बारे में ग्रेटफुल हो जिससे पैसे से जो आई है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू गो फॉरवर्ड। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो चाहे कितना भी ज्यादा हो, खूब थैंक यू यूनिवर्स दैट यू नो आई हैव इलेक्ट्रिसिटी इन माय हाउस, जिसकी वजह से मैं इतने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चलाती हूँ, अपना मोबाइल चार्ज करती हूँ, अपना लैपटॉप चार्ज करती हूँ, उसकी वजह से रोशनी रहती है घर में, यू नो, आई कैन यूज एनीथिंग इलेक्ट्रिसिटी से, पानी गर्म होता है, सारे गैजेट्स चलते हैं। सो यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ दैट while paying the electricity bill, and that's how you will see that money आपकी जिंदगी में मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा, और होता ही चला जाएगा, बिकॉज विक्ट्री सक्सेस इनविजिबल रेम से आती है। कहाँ से पैसा आता है ये आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है, बस हम वो काम करेंगे जो हमको कहा गया है, ठीक है। इस चैप्टर में जो हमको काम बताया है, जो हर चैप्टर में हमको अलग अलग असाइनमेंट्स मिलते हैं, चुपचाप मुंह बंद करके बस वो असाइनमेंट्स करते रहो, और आप देखना आपकी जिंदगी कैसे स्पिन अराउंड करती है। जो रेडिकल चेंज, फिनोमिनल चेंज आर द वर्ड्स दैट वर यूज्ड अगेंस्ट यू नो अबाउट आवर लाइफ। सो फिनोमिनल चेंज, रेडिकल चेंज अपने आप आने शुरू हो जाएंगे, एंड इट्स लाइफ स्पिन्स अराउंड, इट इज नॉट टर्न अराउंड, इट स्पिन्स अराउंड। इतना फास्ट इन सबका असर होता है, बिकॉज यूनिवर्स को आपने खुश कर दिया, तो बस अब आप मजा लूटते रहो जिंदगी का, बहुत मजा आएगा। यूनिवर्स को खुश रखो बिना, और यूनिवर्स कैसे खुश रहते हैं, ग्रैटिट्यूड, लव एंड जीरो कंप्लेन्स। ओके, दैट इज व्हाट इट इज। अब हम आगे पढ़ते हैं कि क्या है। Ever since I One second, discovered, I just have to bring that on the screen, I know, but just sync it with what's there on the screen, because sometimes I take time scrolling. हाँ जी। ever since I discovered the phenomenal power of gratitude, I write the magic words, thank you, paid, on every bill as I pay it, and I never miss a single one. At the beginning, when I didn't have the money to pay a bill, I would still use gratitude's magical power and would instead write across the bill, thank you for the money. Then when I had the money to pay it, I would add, thank you, paid.
Today, you're going to do the same. Take any currently unpaid bills you have and use gratitude's magical power by writing across them. Thank you for the money and feel grateful for having the money to pay the bill, whether you have it or not. If you receive and pay most of your bills online, then when you receive an online bill, forward it to yourself as an email and write in the subject line in capital bold letters, thank you for the money. Next, find 10 bills you have paid in the past and write across the front of each one the magic words, thank you, paid. As you write on each paid bill, feel as grateful as you possibly can that you had the money to pay the bill. The more gratitude you can harness for the bills you have paid, the more money you will magically magnetize to you. From this day forward, you could make it your regular practice that whenever you pay a bill, you briefly think about the great service you have received from the bill and write across the face of the bill the magic words, thank you, paid. And if you don't have the money to pay a bill, use gratitude's magical power and write, thank you for the money. And feel as if you are saying thank you because you have the money to pay the bill. Feeling gratitude for the money you have paid out guarantees you will receive more. Gratitude is like a magnetic golden thread attached to your money. So when you pay money out, the money always returns to you, sometimes equally, sometimes tenfold, sometimes 100-fold. The abundance you receive back depends not on how much money you give, but on how much gratitude you give. You could have so much gratitude when you pay a bill for $50 that you could receive back hundreds of dollars. Magic practice number 9, the money magnet. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, take any current unpaid bills you have. Use gratitude's magical power and write across each one, thank you for the money. Feel grateful for having the money to pay the bill, whether you have it or not. Number 3, take 10 bills you have paid in the past and write across the front of each one of them the magic words, thank you, paid. Feel truly grateful that you had the money to pay the bill. Number 4, before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. Thank you, Anup, for reading so beautifully. So the practice for today is that जो पैसा है जो जब भी हम अब से खर्च करेंगे और जो बिल आएगा उस बिल को, तो आज की प्रैक्टिस में तो हमको 10 रिसेंट, नॉट रिसेंट, जो पैसा आपने पास्ट में भी किया है, लास्ट मंथ में, दिस मंथ में, ऐसे 10 बिल्स आपको निकालने हैं. सो इट्स नॉट मैंडेटरी आप उसका रफ बिल बना लो, आप सिर्फ अपनी ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिख लो. हमको पता तो है कि लास्ट 10 बिल्स हमने कौन से पे किए हैं, मतलब एक एक दिन में ही हम इतने सारे कर देते हैं, isn't it? जैसे अगर मैं yesterday also I got the fuel filled in my car,
So that was the first bill. Then for the lunch, everyone in office, we went for a quick lunch out. None of us were carrying the lunch yesterday also because it was a Saturday. So yeah, we had lunch out. So that was the second money that I paid. Yeah, and then I had picked up something. Yeah. तो 3 चीजें कल 3 बिल्स पे किए टोटल, तो वो 3 हो जाएंगे. फिर आप सोचो और क्या. So of course, like my my car loan got deducted, so I remember that. So you can go to your all the खर्चास, जो groceries खरीदी, कभी milk खरीदा अपने स्टोर से, कभी जो फ्रूट्स खरीदे होंगे. फ्रूट्स के तो बिल हमको अगर हम वेंडर से लेते हैं तो मिलते भी नहीं है ना. वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स अगर हम स्ट्रीट वेंडर से लेते हैं तो हमको बिल्स नहीं मिलते. But we can just write it in your gratitude journal, because it's, and chahe even if it is a 10 rupee or a $2 thing, if you've taken even a $2 thing, it really does not matter. Usme bhi itna gratitude bhar do, because it's not, isme last para mein ye mentioned hai, it is not the amount of money that you have paid, it is the amount of gratitude that you have given when you pay that money. Okay, so this is how it should be done, and it is done. So 10 हमको recent last month के या उसके पहले के सारे वो bills लेने हैं, और उसको अपने gratitude journal में भी लिख सकते हो. जैसे छोटा सा एक square बना के bills के जैसे होते हैं. So suppose $10 for whatever milk and eggs and breads and whatever you purchased, and thank you paid, and feel gratitude about that thing जो आपने खरीदी उस पैसे से, और आपके पास पैसे हैं उसके खरीदने के लिए, उसके लिए बहुत ज्यादा grateful feel करो. फिर उसके बाद second bill पे जाओ. Maybe it was you paid to someone for ironing of the clothes or for the laundry that you may have given. ठीक है, तो उसके लिए एक छोटा सा वो स्क्वायर बनाओ, उसमें बिल बना लो, that ₹520 for dry cleaning of the clothes, thank you paid. फिर उसके बाद आपने टेलर को पैसे दिए हैं, या आपने कोई स्टोर से अपने लिए आउटफिट खरीदी है, उसके कितने पैसे दिए, thank you paid. Thank you universe that I have the money to pay for this, and thank you for the most beautiful outfit I have got with that money, and I had money to buy it. Thank you so much. Now go to bill number 4. Okay, that you had given maybe to your domestic helper. It was just maybe, like 20 rupees. So give the ₹20 given to so and so for her personal expense. Maybe उसने आपसे ऐसे borrow किया, उसने बोला है कि can you give me so much money, या आपने वैसे ही खुशी से दे दिए क्योंकि एक्स्ट्रा काम था, आपके यहाँ गेस्ट आए हुए थे या whatever. So आपने दिए उसको for all the work that she does. Thank you paid. So thank you paid, you have to write on the bill that you have paid. Okay, thank you paid. अगर कोई ऐसा बिल, तो 10 ऐसे करने हैं हमको. लास्ट 10 ट्रांजैक्शंस जो आपने किए हैं, अपने क्रेडिट कार्ड से किए हैं, अपने डेबिट कार्ड से किए हैं, आपने गूगल पे से किया है, अपने पेटीएम किया है, जो भी आप लिख के आप उसको कर लो. ठीक है, टेक्निकलिटी में मत जाओ कि बिल इकट्ठा करते रहोगे. और अब के बाद से गोइंग फॉरवर्ड जो बिल आ रहा है, आप किसी भी स्टोर में आप जा रहे हो, वहां से ग्रोसरीज भी खरीदी है तो बिल तो आता ही है ना इलेक्ट्रॉनिक. तो अगर वो बिल आ रहा है तो उसके बाद उस पे आप थैंक यू पेड उसी वक्त लिख लो. मतलब मेरे तो जो बिल आता है मैं उसी वक्त लिख लेती हूँ थैंक यू पेड, और फील वेरी ग्रेटफुल फॉर द मनी जो आपने यूज किया है उसके लिए, और कि आपके पास पैसा है वो खरीदने के लिए. ठीक है, सो इस तरह से गोइंग फॉरवर्ड. तो आज की प्रैक्टिस में तो 10 हमको ट्रांजैक्शंस के बारे में लिखना ही है, जो हमने पैसे दिए. एंड गोइंग फॉरवर्ड वेट मत करो कि बिल इकट्ठा करो. हाथों हाथ आपकी ऑनलाइन डिलीवरी आई है, उस पे हमेशा ग्लूड होता है, टेप्ड होता है बिल, है ना, उसको निकालो, या उस पैकेट के ऊपर जो टेप किया हुआ बिल है उसी पे लिख दो थैंक यू पेड, एंड थैंक यू जो भी आपने मंगवाए हैं अपने लिए, शैम्पूज, कंडीशनर्स, मतलब बहुत सारी चीजें ऑनलाइन आती हैं आजकल. तो लोगों के यहाँ दूध अंडे भी ऑनलाइन ही आ जाता है. ठीक है, सो फॉर दैट यू कैन जस्ट राइट उसके बिल के ऊपर थैंक यू पेड. So this is about the bills. Now there might be bills जो आपको पता है कि आपको पे करने हैं, आए हुए हैं, लेकिन आपके पास अभी पैसा नहीं है उनको पे करने के लिए, है ना. जैसे क्रेडिट कार्ड बिल आपका आया है, सो आपको लग रहा है क्रेडिट कार्ड बिल आपका 90,000 रुपीज का हो गया है, और आपको यू वांट टू बैलेंस इट आउट टू 0. अभी आपके पास पैसे नहीं है तो आप मिनिमम अमाउंट हर महीने देते हो, आपको पूरा देना है. दैट इज अ बिल यू ऑलरेडी रिसीव्ड ऑनलाइन.
तो आप उसको वैसे ही पर्ची जो आपने बनाई है अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में, उसमें आप बना लो ₹90,000 फॉर ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड लोन, और उस पे आप लिख लो थैंक यू फॉर द मनी। थैंक यू पेड तो लिख नहीं सकते, क्योंकि हमको तो पैसा उसके लिए जनरेट करना है, हमको मैनिफेस्ट करना है ना उसका पैसा, तो हम थैंक यू पेड नहीं लिखेंगे, उस पे लिखेंगे थैंक यू फॉर द मनी। और दिल में फील करो कि वो पैसा आपके पास आ गया है और किस तरह आप उस क्रेडिट कार्ड बिल को ऑनलाइन पे ऑफ कर रहे हो, एंड इट हैज कम डाउन टू 0। और इमेजिनेशन में ही देखो कि आपका 0 वो आया है बिल, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट साइकिल वाला, ठीक है। और जब बिल आ जाएगा, अब आपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में थैंक यू फॉर द मनी लिख लिया है उसका 90,000 का, 90,000 आ जाएंगे तो आप उसको बिल को पे करो, और उसी जगह जहां पे आपने थैंक यू फॉर द मनी लिखा है उसको काट दो एक लाइन से, और नीचे लिखो थैंक यू पेड, बिकॉज यू हैव पेड इट, सो नाउ यू आर ग्रेटफुल इवन आफ्टर पेइंग इट। ओके, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू अबाउट आज की एक्सरसाइज। और इसमें लिखा हुआ है दैट इसके बाद आप देखना पैसा कैसे मैग्नेटाइज करते हो अपनी जिंदगी में, ठीक है। नॉर्मली हम लोग पैसे देते हैं तो फोन पे बात कर रहे होते हैं, ठीक है, या फिर बोलते हैं क्या भैया इतना महंगा, यू नो लाइक इस तरह की चीजें, या बोलते नहीं है तो बाद में सोचते हैं कि बहुत खर्चा हो गया, यू नो लाइक। सो इस तरह से आते हुए पैसे भी आपके रुक जाएंगे अगर इस तरह का एनर्जी, बिकॉज मनी बहुत जल्दी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। सो मनी में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी दो एंड यू विल बिकम धन का चुंबक, बिकॉज दिस चैप्टर इज कॉल्ड मनी मैग्नेट एंड इट इज अबाउट बिल्स मेजरली, ठीक है। बिकॉज जनरली पैसा देते वक्त सबका दिल थोड़ा छोटा हो जाता है, पैसा लेते वक्त सबका बहुत ब्रॉड दिल रहता है, बहुत ईजी होता है तब थैंक यू बोलना जब मनी आता है, लेकिन जब मनी जाता है तो सबका दिल छोटा हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण हमें हमेशा पैसे के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। हमने कहीं से भी गलत तरीके से अगर किसी का पैसा रख लिया है कि आपको किसी को देना था और आपने रख लिया है, आप उसको पैसा नहीं दे रहे हो, तब भी आपके पैसे कम होते जाएंगे। तो इसीलिए दिल खोल के लोगों को पैसा दो, चाहे कितना भी देना पड़े, आपका बिल्कुल फाइनेंशियल कर्मा ही चेंज हो जाएगा स्क्रैच से, आपको कभी पैसे के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन दिल बड़ा रख के पैसे दो। मनी एनर्जी सर्कुलेटरी होती है, सर्कुलेशन में रहती है। जैसे ही आप पैसे को रोकोगे और उसके आगे डैम बना दोगे, जैसे डैम होता है ना, एक वॉल खड़ी कर देते हैं उसके पीछे ही पानी होता है, अगर आपने डैम बना दिया पैसे के सर्कुलेशन में, ठीक है, तो उसको स्टैग्नेटेड मनी बोलते हैं। अब वो स्टैग्नेट हो गया, स्टैग्नेटेड पानी में से हमेशा गंदी बदबू आती है ना, उसके ऊपर काई जम जाती है, उसके ऊपर मच्छर आ जाते हैं, कीड़े आ जाते हैं, अगर एक जगह पानी इकट्ठा रहता है तो। हमको पानी, मनी भी ऐसे ही होती है, इसीलिए कहते हैं लक्ष्मी चंचल होती है, ठीक है, क्योंकि वो सर्कुलेशन में रहनी, उसको एक जगह टिक के नहीं रहा जाता है, वो चंचल होती है जेन्युइनली। इट इज, इस बुक में भी हमने पढ़ा है, हमने मनी चैप्टर में पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड में भी यही पढ़ा है दैट मनी इज ऑलवेज इनटू सर्कुलेशन। इसलिए दिल खोल के खर्चा करो, खर्चा करोगे जितना बड़ा दिल रख के, उतने ही बड़े दिल से छप्पर फाड़ के पैसे आएंगे हमारे पास। तो जो चीजें आपको करने का दिल होता है उसको, मतलब ऑफ कोर्स लाइक सबको अपना पता होता है लिमिट क्या होती है, जैसे अगर हमको एकदम से कोई आउटफिट पसंद आई और वो 1.2 लाख की है, और तो हम नहीं खरीदेंगे, हमको पता है कि सपोज आपको लहंगा खरीदना है, लहंगा चोली और समथिंग, और वो भी 1.2 लाख का कॉस्ट कर रहा है, तो हमको पता है कि वो नहीं खरीदना है हमको, लेकिन हमारा बजट 25-30,000 का है ना, किसी ओकेजन के लिए, तो आप वो वाला खरीद लो, हाउ डज इट मैटर, मत खरीदो उसके लिए, लेकिन एडमायर बहुत करो वो 1.2 वाली आउटफिट, एडमायर बहुत करो, अप्रिशिएट बहुत करो कि वाओ इट्स सो ब्यूटीफुल। आप अपने आप आपको वो की वैसी चीज आपको 20,000 में मिल जाएगी, हो सकता है 15 में ही मिल जाए, पता भी नहीं होता। हाउ दिस यूनिवर्स ब्रिंग्स द थिंग्स फॉर यू, यू कैन नेवर अंडरस्टैंड, इट इज सो मिस्टिक, ओके। और वो ह्यूमन माइंड के बियॉन्ड होती है समझना कि ये चीज कैसे मेरी जिंदगी में आ गई। मतलब मैं तो कभी कभी हैरान रह जाती हूँ कि कोई आउटफिट देखती हूँ और वो ना, वो ऑनलाइन उसकी ड्यूप नजर आ जाती है दूसरे ब्रांड में। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। और मतलब वो थी मे बी पहले 12,000 रुपए की, और ये वाली होती है करीब 2,000 की, तो इतना ज्यादा फर्क होता है।
ठीक है। सो अगर वैसा है, अगर आपको लगता है कि अभी नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो और वो कर पा रहे हो, बट प्यार और अप्रिसिएशन दिल खोल के दो उसको। ये मत सोचो कि इतनी महंगी है, इतनी तो वर्थ भी नहीं है, ये सब हमको बोलने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। और जो बिल आएगा आपसे थैंक यू पेड लिखेंगे। तो ये दो दो 2 pronged एक्सरसाइजेज है ना। वन इज थैंक यू फॉर द मनी फॉर अनपेड, एंड 10 bills थैंक यू पेड, एंड गोइंग फॉरवर्ड हर बिल पे थैंक यू पेड, थैंक यू पेड, थैंक यू पेड। 5 रुपए 10 रुपए भी खर्च किए, थैंक यू पेड। मूवी का कोई टिकट बुक किया है, थैंक यू पेड। दिस इज हाउ वी हैव टू बी गोइंग फॉरवर्ड, तभी हम धन के चुंबक बनेंगे। ठीक है। सो वो सुबह की प्रैक्टिस काउंट माई ब्लेसिंग्स, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू डूइंग दैट। उसमें हम रोज अपने 10 blessings लिखेंगे। स्टार्ट योर डे इन द अल्फा स्टेट विद ब्लेसिंग्स, इट इज ब्यूटिफुल, लाइफ इज गोइंग टू बी ब्यूटिफुल। ओके, सुबह सुबह उस एनर्जी को आप ट्रांसफॉर्म करके आप किक स्टार्ट इनटू द डे कर रहे हो विद दैट काइंड ऑफ एन एनर्जी। इट्स लाइक रियली रियली अमेजिंग, एंड यू विल सी दैट सिचुएशंस आपकी जिंदगी में चेंज होने लग जाएंगी। चाहे किसी भी चीज के लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हो। देखो, ग्रैटिट्यूड ये जरूरी नहीं होता कि आप जो आपका ब्रेकडाउन एरिया चल रहा है आप उसी में करो, है ना। इट्स अबाउट एनर्जी, हमारी एनर्जी। हमारी एनर्जी अगर अच्छा खाना के बारे में सोचने से चेंज होती है तो उसके लिए थैंक यू बोल दो। अगर आपकी सपोज अगर बहुत स्टिंकिंग रिलेशनशिप है, आपको नहीं बोला जाता, तो आपके हेल्थ के लिए अपना कर दो, यू नो, थैंक यू फॉर माई ब्यूटिफुल हेयर, थैंक यू फॉर माई ब्यूटिफुल स्किन, थैंक यू फॉर माई wardrobe, थैंक यू दैट आई लिव इन a nice house, I have roof over my head, thank you that there's electricity in my house which I use, you know, random thank you that मेरी सांस इतने अच्छे से अंदर जाती है, थैंक यू दैट आई एम सो मोबाइल, आई कैन वॉक वेरेवर, थैंक यू मेरी ड्राइविंग स्किल्स इतनी अच्छी है, थैंक यू मेरे घर में कार है, स्कूटर है, स्कूटी है, जो भी व्हीकल आप यूज करते हो। ये भी तो एनर्जी होती है। सो इट इज अबाउट एनर्जी। अब एनर्जी किस आप डेफिनेटली मतलब नहीं फोकस कर पा रहे हो उस वक्त रिलेशनशिप, इट डजंट मैटर, किसी और चीज के लिए कर दो। ठीक है, बट अपनी एनर्जी हमेशा अच्छी रखो। काउंट माई ब्लेसिंग से ये बहुत बड़ा फायदा है कि सुबह कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी हमारी बहुत अच्छी हो रही है। लेकिन अगर आप बेड से उठ गए, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, अरे मशीन लगानी है, खाना बनाना है, आज ऐसा है, वो है, अरे मेरे शूज कहाँ पड़े हैं, घर कितना गंदा हो रहा है, अरे ये कैसे हो गया, तो यू आर गॉन। देन आपने वो अल्फा स्टेट, जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी को आप कैप्चर कर सकते थे, वो आपने वेस्ट कर दिया। इसीलिए बेड छोड़ने के पहले, ठीक है, आप यू गो टू द बाथरूम इफ यू वांट टू गो, बट देन उसके बाद आके आप अच्छे से अपने 10 ब्लेसिंग्स लिख के अपना दिन की शुरुआत करो। लिखने में बहुत पावर होती है। लिखना मीन्स आप इंटरनल टॉकिंग भी साथ साथ चलती है, क्योंकि लिखते हम थोड़े स्लो है ना, मतलब बोलने में जो चीज बोलेंगे वो बहुत जल्दी बोली जाती है। लाइक थैंक यू फॉर द मनी, अगर मुझे बोलना है तो मैंने बोल दिया थैंक यू फॉर द मनी, इतनी देर में मैं सिर्फ थैंक लिख पाऊंगी अगर लिखूंगी तो आप लिखने में बाय डिफॉल्ट आपकी इंटरनल टॉक चल रही है, ऑटो सजेशन एंड इमेजिनेशन। अपने आप मनी का नाम आते ही आपको इंडियन करेंसी, गांधी जी का नोट, वो वैसा उस तरह से अपना वॉलेट, पता नहीं जो भी याद आ जाता है। ठीक है, तो इमेजिनेशन, लिखना, बोलना, सुनना, ये सब इकट्ठे हो जाता है जब आप लिखते हो। इसीलिए सुबह की एनर्जी को कैप्चर करके अपनी 10 ब्लेसिंग्स दिल से लिखो और हर एक को रीरीड करो दोबारा से, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार बोलो। वी आर यूजिंग द नंबर 3 फॉर क्रिएशन प्रोसेस। ओके, और रात को सोने के पहले फिर से हम अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, स्लीपी ड्राउजी स्टेट। उसमें हम अपना मैजिक रॉक पकड़ेंगे अपनी मुट्ठी में, एंड हम पूरे थिंक थ्रू द डे करेंगे। वाओ, कल इतना मजा आया, सुबह मैंने इतने सारे ब्लेसिंग्स लिखे, सुबह के सेशन में आज मैंने ये सीखा कि कैसे अपने बिजनेस को, अपने जॉब को, अपनी लाइफ में आप कैसे बहुत पैसे कमा सकते हो। कल हमने सबकॉन्शियस में कितने अच्छे एक्सपेरिमेंट्स वो पढ़े थे ना, 2 साइंटिस्ट के, कि कितने पावरफुली वो लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज करते हैं, और एक हम देखो अभी भी रोते रहते हैं, है ना। तो उस तरह से वो सीखा, तो अब मैं वो अप्लाई जरूर करूंगी। और कल मैंने पूरे दिन कोशिश की कि मैं परेशान ना हूं किसी भी चीज को। सो दैट वाज रियली गुड। थैंक यू टू बोथ द ऑथर्स, जो बुक्स हम पढ़ रहे हैं, दोनों किताबें। फिर उसके बाद इतनी अच्छी ड्राइव, कल मैं इतना अच्छा लग रही थी, आई वाज लुकिंग सो स्लिम एंड नाइस, एंड लाइक माय ड्रेस वाज, माय आउटफिट वाज लुकिंग सो गुड ऑन मी, थैंक यू। फिर उसके बाद आप गए, बहुत अच्छी ड्राइव, सो आई हैड अ ब्यूटीफुल ड्राइव टू वर्क, थैंक यू सो मच। फिर कल मुझे एक प्रेजेंटेशन बनानी थी, बहुत इंपॉर्टेंट, तो मैंने सुबह ही जाके सबको बोल दिया था कि आज मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना, आज मैं बहुत फोकस के साथ प्रेजेंटेशन बनाऊंगी।
तो मैं बहुत अच्छे से पूरी प्रेजेंटेशन में कंप्लीट करके आई। शाम को 6:05 हो गया था करते करते, बट आई डिड दैट, आई कंप्लीटेड माय वर्क। ओके, सो थैंक यू फॉर दैट। फिर हम बहुत टेस्टी लंच के लिए नैवेद्यम गए, साउथ इंडियन वो है, बहुत अच्छा, मजा आ गया। मतलब आई ऑर्डर्ड दैट, पता नहीं वो रवा मसाला डोसा मैसूर समथिंग, ठीक है, बहुत अच्छी सी उसमें लाल लाल चटनी लगी हुई थी। आई रियली लव्ड इट, यू नो, एंड आई लव दैट। एक पीनट की चटनी थी, इट वाज सो नाइस, थैंक यू। इस तरह आपको सोचना होता है, ठीक है। तो उसके बाद ड्यूरिंग रात तक आपने क्या क्या किया, छोटी छोटी चीजें। आप पूरी रात अब इस एनर्जी के साथ जब आप सो रहे हो, ठीक है, ह्यूमन माइंड इज वेरी फर्टाइल। फर्टाइल मतलब उपजाऊ। अब आपने सीड क्या डाला है सोते वक्त, थैंक यू का। अब वो फर्टाइल लैंड है ह्यूमन माइंड, अब वो मल्टीप्लाई करेगा। और वो बहुत, मतलब ग्रैटिट्यूड मल्टीप्लाई होना, तो सोचो आपकी जिंदगी में अबंडेंस आप अट्रैक्ट करने लग जाओगे। हर चीज अच्छी अच्छी चीज के आप अपनी ओर मैग्नेटाइज करोगे, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो इसलिए बहुत जरूरी है दैट सुबह उठते से ही काउंट माई ब्लेसिंग्स, ट्राई टू नॉट लीव द बेड, okay, before you have written all your 10 blessings, because that's very very important, because उसमें energy channelize कर रहे हो। आपने देखा है ना, सुबह कभी भी मंदिर आप सुबह के टाइम जाओ और सुबह की आरती में पार्टिसिपेट करो ना, उसकी एनर्जी अलग होती है। वही चीज अगर आप 12 बजे की आरती में जा रहे हो तो उसमें एनर्जी अलग होगी। सुबह एक्चुअली कहते हैं कि सारे देवी देवता, मतलब वी कॉल हेवनली बॉडीज और पॉजिटिव फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स इज व्हाट वी वुड कॉल इट, बिकॉज आई ऑल्सो डोंट बिलीव सो मच इन गॉड. But yes, I do believe in that higher power which is there, you know, the super intelligence. So that force of the universe, you know, that is what which we call as God. That's the force of the universe. So that force of the universe is very active. As I always say, there is no traffic jam between you and the forces in the morning time. Okay, so you reach out to the forces where your prayers get answered much faster. So उस टाइम को कैप्चर करो, उसको यूटिलाइज करो। इसीलिए सुबह बेड से उतरने के पहले आपसे मैक्सिमम आप चप्पल पहन के बाथरूम जाओ, मैक्सिमम, ठीक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। पहले अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिखो, 7 मिनट भी नहीं लगते हैं कंप्लीट करने में ब्लेसिंग्स और उसको रीड करने में। अब आप अपना दिन शुरू करो, अब मजे से जाओ। आपने अपनी एनर्जी को चैनलाइज करके डायरेक्ट कर दिया है, फोकस कर दिया है, और सेम थिंग रात को ये करनी है। और बीच में एक्सरसाइजेस हमको रोज की मिलेंगी, तो कम से कम हम उल्टे सीधे पचड़ों में नहीं पड़े रहेंगे, है ना। वी आर सो फोकस्ड ऑन आवर लाइफ, वी बिकम दैट ब्यूटिफुल रेडियंस लाइक द सन। नाउ जैसे सूरज जहां जाता है वहां इल्यूमिनेट हो जाता है ना, वैसे आप जहां जाओगे आप देखना, आप उस जगह को, वहां के लोगों को, सबको इल्यूमिनेट कर पाओगे। इट इज दैट ब्यूटिफुल, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द मनी मैग्नेट चैप्टर। और अब हम दूसरा बुक पढ़ेंगे विच इज कॉल्ड द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, जो आज पूनम पढ़ेंगी। और उसमें हम सक्सेस वाला चैप्टर कर रहे हैं, और हम पावर कैसे सबकॉन्शियस माइंड को यूज करना है वो हम पढ़ रहे हैं सक्सेस के लिए। ये सक्सेस वाला चैप्टर है। वर्क सक्सेस, स्टूडेंट सक्सेस, एक होम मेकर की सक्सेस, एक साइंटिस्ट की सक्सेस, एक कंसल्टेंट की सक्सेस, एक बिजनेस ओनर की सक्सेस, एक स्टोर ओनर की सक्सेस, एक एम्प्लॉय की सक्सेस कैसे होती है, सक्सेस चैप्टर है, ठीक है। तो हम मोस्ट ऑफ इट कर चुके हैं। तो आज हमको करना है कैसे एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट और साइंटिस्ट थे जिनको रशियन कैंप में कैप्चर कर लिया था, बंदी बना लिया था, और कैसे उन्होंने अपनी सबकॉन्शियस माइंड को यूज करके वो निकल पाए, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक है। ये बहुत पावरफुल एक्सपीरियंस है, जहां तक मुझे याद है लास्ट टाइम जी जब पढ़ा था, सो आई वाज ऑस्ट्रक एज टू हाउ दिस इज द एक्सटेंट आप यूज कर सकते हो अपना सबकॉन्शियस माइंड, है ना। सो हाँ जी पूनम। How a famous scientist and physicist escaped from a Russian concentration camp. Dr. Lothar von Blankenschmidt, a member of the Rocket Society and an outstanding research electronic engineer, gives the following condensed summary of how he used his subconscious mind to free himself from certain death at the hand of brutal guards in a Russian prison camp coal mine. He states as follows:
I was a prisoner of war in a coal mine in Russia, and I saw men dying all around me in that prison compound. We were watched over by brutal guards, arrogant officers, and sharp, fast-thinking commissioners. After a short medical checkup, a quota of coal was assigned to each person. My quota was 300 pounds per day. In case any man did not fill his quota, his small food ration was cut down, and in a short time, he was resting in the cemetery. I started concentrating on my escape. I knew that my subconscious mind would somehow find a way. My home in Germany was destroyed. My family wiped out. All my friends and former associates were either killed in the war or were in the concentration camp. I said to my subconscious mind, I quote, I want to go to Los Angeles and you will find the way, unquote. I had seen pictures of Los Angeles and I remembered some of the boulevards very well as some of the buildings. Every day and night, I would imagine I was walking down Wilshire Boulevard with the American girl whom I met in Berlin prior to the war. She's now my wife. In my imagination, we would visit the stores, ride buses, and eat in the restaurants. Every night, I made it a special point to drive my imaginary American automobile up and down the boulevards of Los Angeles. I made all this vivid and real. These pictures in my mind were as real and as natural to me as one of the trees outside the prison camp. एक सेकंड में इतना समझा देती हूँ पूनम हिंदी में, क्योंकि बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। तो इसमें ये है दैट ये जो साइंटिस्ट और रिसर्चर थे, ये थे तो जर्मन ओरिजिन के, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर हुआ था अमेरिका और रशिया के बीच में, तो इनको भी बंदी बना लिया था और कोल माइन में इनको रखा हुआ था, जहां पे रोज ये देख रहे थे कि जितने भी उनके साथ में जो प्रिजनर्स थे उनको एक एक करके वो लोग मारते जा रहे थे, मतलब जान से मार रहे थे, है ना, मतलब रशियंस बहुत ब्रूटली मार रहे थे। और उनको रोज का कोटा कोल को भरने का मिलता था, क्योंकि वो कोल माइन था, तो कोल में माइनिंग में कोल निकलता है, फिर वो ट्रांसपोर्ट होता है, तो इनको रोज का कोटा मिलता था। अगर आप उतनी मेहनत नहीं कर पाते हो, इतना कोटा सिर पे ढो के कोल डालना, वो भी इतने क्विंटल्स, तो वो नहीं कर पाते थे, तो उनके खाने में से कटता था, मतलब खाने का राशन उनको कम मिलता था। और ये जो थे, फिर इनको पता था पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, ये जो रिसर्चर थे, तो पहले तो ये बहुत ज्यादा परेशान थे कि ये तो मारते जाएंगे, मुझे भी मार डालेंगे, क्योंकि इतने सारे लोगों को इन्होंने मार दिया है, और इस तरह से तो यहाँ पे तो कोई एंड लग ही नहीं रहा है, वॉर तो पता नहीं कब खत्म होगी। तो एज अ ह्यूमन आप परेशानी में थोड़ा सा ड्वेल करते हो, लेकिन इन्होंने फिर सोचा कि नहीं, आई नीड टू बी सोल्यूशन ओरिएंटेड। और फिर उन्होंने कहा कि अपने आप को ये इमेजिनेशन किया, बिकॉज ये बुक बहुत ज्यादा इमेजिनेशन और ऑटो सजेशन पे बेस्ड है कि आपकी खुद की सेल्फ टॉक क्या है, डोमिनेंट सेल्फ टॉक क्या रहती है, दैट आई एम नॉट गुड इनफ, मेरे बस की नहीं है, ऐसी सेल्फ टॉक है तो आपकी जिंदगी वैसी होगी। बिकॉज जो सबकॉन्शियस माइंड में इंफॉर्मेशन फीड होती है, वही आप अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में देखते हो, तो आप वहीं से रिप्रोग्राम कर दो, है ना, ऑटो सजेशन। तो उन्होंने अपने आप को बार बार ये बोलना और इमेजिन करना शुरू कर दिया दैट आई एम लिविंग विद द ब्यूटीफुल गर्ल इन लॉस एंजलिस, क्योंकि उनको वहां जाना था, ठीक है। तो उन्होंने, और उस लड़की से वो बर्लिन में मिले थे वॉर के पहले, तो तब से उनको था दैट ही लव दिस गर्ल, और उनको ये था कि उनको इससे शादी करनी है,
ठीक है। तो उन्होंने अब एलए के जो बुलवर्ड्स हैं वहां पे इमेजिन किया कि वो वॉक कर रहे हैं, वो अपनी वहां पे कार चला के जा रहे हैं, और उनको एग्जैक्टली एलए का वो पता था कि कैसा दिखता है क्या है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत जाते होंगे तो ऑब्वियसली उनको एग्जैक्टली पता था कि वो बुलवर्ड की रोड कैसी है, और एक साइड पे बहुत ट्रीज एंड प्लांट्स एंड फ्लावर्स ग्रो हो रहे हैं, और वो लड़की के साथ वॉक कर रहे हैं हैंड इन हैंड, और ये सारा। तो उन्होंने लगातार ये इमेजिनेशन किया, और सारी वो एक एक बिल्डिंग को भी देखते थे, क्योंकि पता ही होता है ना, जहाँ पे आप रहते हो वहां का आपको लोकेलिटी पता होती है, आपको कैसा व्यू होता है वो मालूम होता है, किस तरह के वहां पेड़ लगे हुए हैं, यूकेलिप्टस के पेड़ हैं, बैनियन ट्रीज हैं, ये पता होता है हमको। तो उनको पूरा वो लुक एंड फील ऑलरेडी पता था उस जगह का, तो वो उसको इमेजिन करते थे कि मैं एलए की रोड्स पे चल रहा हूँ, और वो वैसे ही टॉल टॉल बिल्डिंग्स ही वाज वाचिंग, एंड जो बुलवर्ड के पार्क्स हैं, और फिर वो एक अमेरिकन कार को ड्राइव कर रहे हैं। तो इस तरह कर करके, क्योंकि वो ऑब्वियसली जाना चाहते थे वहां पे, तो वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में रेपिटेटिवली प्रोग्राम कर रहे थे ये सारी चीजें। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे। हाँ जी। Every morning, the chief guard would count the prisoners as they were lined up. He would call out 1, 2, 3, etc. And when 17 was called out, which was my number in sequence, I stepped aside. In the meantime, the guard was called away for a minute or so, and on his return, he started by mistake on the next man as number 17. When the crew returned in the evening, the number of men was the same, and I was not missed, and the discovery would take a long time. I walked out of the camp undetected and kept walking for 24 hours, resting in a deserted town the next day. I was able to live by fishing and killing some wildlife. I found coal trains going to Poland and traveled on them by night until finally I reached Poland. With the help of friends, I made my way to Lucerne, Switzerland. One evening at the Palace Hotel, Lucerne, I had a talk with a man and his wife from the United States of America. This man asked me if I would care to be a guest in his home in Santa Monica, California. I accepted, and when I arrived in Los Angeles, I found that the chauffeur drove me along Wilshire Boulevard and many other boulevards which I had imagined so vividly in the long months in the Russian coal mines. I recognized the buildings which I had seen in my mind so often. It actually seemed as if I had been in Los Angeles before. I had reached my goal. I will never cease to marvel at the wonders of the subconscious mind. Truly, it has ways we know not of. ओके, सो उसके बाद ये जो इमेजिन कर रहे थे, प्रिजन के अंदर ही थे, अभी तो कोल माइन में ये बंदी बने हुए थे, प्रिजनर थे, तो ये रोज रात को इमेजिन करते थे कि वो किस तरह से एलए में घूम रहे हैं उस लड़की के साथ में, है ना। तो अब सीक्वेंस कैसा हुआ देखो, इमीडिएटली यूनिवर्स ने अगले ही दिन इनकी ये वाली प्रेयर आंसर करी, मतलब कुछ टाइम के लिए इन्होंने किया था। एंड व्हाट हैपेंड कि वो जो सुबह सुबह गार्ड आके ना सबकी गिनती करते हैं ना, मतलब प्रिजनर्स को सबको नंबर दिया हुआ है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और वो जैसे अटेंडेंस लेते हैं। ठीक है, तो उनकी अटेंडेंस हो रही थी रोज सुबह, और वही अटेंडेंस पूरे दिन भर के बाद रात को भी होती थी। ठीक है, तो ये उनका वो नॉर्मल रूटीन था। तो अब सुबह जब अटेंडेंस हो रही थी तो इनका नंबर 17 था। ठीक है, तो वो हुआ 1, 2, 3, 4, और वो गार्ड से ऐसी ह्यूमन मिस्टेक हुई कि उन्होंने इनको काउंट ही नहीं किया, और जो इनके बाद वाला था उसको 17 किया, मतलब 16 किया, फिर ये इनका 17 नंबर था, 17 स्किप कर दिया और 17 इनके बाद वाले को किया। इसका मतलब है कि अब शाम को जब काउंटिंग होगी तो उसमें अगर ये नहीं भी होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
तो ये इस तरह जब अपनी माइनिंग में बाहर ये लोग काम के लिए जा रहे थे कोल माइन में, ये वहां से निकल गए, एस्केप हो गए, क्योंकि शाम को काउंटिंग में नंबर तो सेम ही था, क्योंकि इनको काउंट ही नहीं किया था गलती से। ये क्या, ये यूनिवर्स की डिजाइन थी, है ना। दिस इज हाउ, इसीलिए हम कहते हैं ना, हाउ में मत पढ़ो कभी भी। हाउ इज टेकन केयर ऑफ बाय द फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स, वी डोंट नीड टू थिंक अबाउट इट। आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो चाहिए उसको इंप्रेस कर दो, बस, योर वर्क इज ओवर देयर। और उसी के बारे में वाव फीलिंग के साथ डिस्कस करते रहो, ठीक है। इसको वाव टेक्निक बोलते हैं, बाय द वे। इट्स कॉल्ड वाव टेक्निक, दैट वाव आई कुड डू दिस, वाव दिस इज लाइक सो अमेजिंग, क्योंकि वाव इज अगेन अ हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी वर्ड। सो अब वो निकल गए वहां से, और जब वो जाने लगे तो फिर एक डेजर्टेड से टाउन में गए, क्योंकि उस वक्त वॉर हुआ था तो बहुत लोग किल हुए थे। तो वो जो सिटी थी, जिस विलेज में जिसमें गए थे, उसमें कोई भी नहीं था, वो बिल्कुल डेजर्टेड था। तो जैसे तैसे उन्होंने अपने खाने का जुगाड़ किया, उन्होंने खाना वाना खाया। उसके बाद उन्होंने देखा कि रशियन ट्रेन, सॉरी हाँ, ये रशियन ट्रेन, ये कोल माइन जो था, कोल लेके जा रही है पोलैंड। तो वो किसी ट्रेन में चढ़ गए, और वहां पे कुछ दोस्त बना लिए उन्होंने, मतलब उसी ट्रेन में। तो उनकी मदद से वो स्विट्जरलैंड के पैलेस होटल में गए। अब वो खुल गए ना। ही वॉज एक्चुअली अ नाइस रिच गाय, रिसर्चर, और बहुत नामी फिजिसिस्ट थे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं था दैट ही वाज, इट जस्ट दैट वो कैप्चर हुए थे, क्योंकि वॉर में बहुत लोग कैप्चर हुए थे उनके साथ में। अब वो फाइनली स्विट्जरलैंड पहुंच गए, जो ट्रेन में फ्रेंड्स बने उनके उनकी मदद से वो स्विट्जरलैंड पहुंच गए, और वहां पे पैलेस होटल में रहे। पैलेस होटल में जब वो ऐसे ही एक दिन डाइन कर रहे थे, तो उनको एक अमेरिकन कपल मिले, और वो लोग दे गॉट टॉकिंग टुगेदर एंड दे बिकेम फ्रेंड्स। और वो जो कपल थे, हस्बैंड वाइफ, उन्होंने इनको सेंटा मोनिका कैलिफोर्निया में इनवाइट किया, और उन्होंने कहा कि हम वहां पे रहते हैं, व्हाई डोंट यू कम एंड बी आवर गेस्ट। और इन्होंने बहुत इजीली एक्सेप्ट किया। इस तरह फाइनली वो कैलिफोर्निया पहुंचे, और ये उनकी एलए तक की जर्नी थी। और फाइनली उन्होंने जो इमेजिनेशन में देख रहे थे ना, किस तरह ऐसी बिल्डिंग्स हैं, बुलवर्ड पे वो कर रहे हैं, वो फाइनली हुआ। और उनको फिर याद आया कि यही तो मैंने देखा था, एग्जैक्टली इसी तरीके का तो विजुअलाइजेशन किया था, ऐसी ही बिल्डिंग्स थी, ऐसा ही सब था। एंड दैट्स हाउ फाइनली ही रीच्ड एलए, एंड सो ही रोट दैट आई हैड रीच्ड माय गोल। दिस वाज हिज गोल, बिकॉज वो गोल विजुअलाइजेशन करते थे। प्रोसेस नहीं कर सकते ऐसे में ना, प्रोसेस विजुअलाइजेशन नहीं कर सकते, वो यूनिवर्स का काम था, क्योंकि उस वक्त कहाँ पता था कि आप रशिया से अमेरिका पहुंच जाओगे, और ये जर्नी रहेगी पूरी कि आप पोलैंड जाओगे, वहां से स्विट्जरलैंड जाओगे, वहां से आप अमेरिका जाओगे। उनको कहाँ पता था कि किस किस कौन से दोस्त बनेंगे, किन लोगों की मदद से आप क्या करोगे, कि कोई गेस्ट मिलेगा होटल में, वो आपको सेंटा मोनिका इनवाइट करेगा। ये सब ह्यूमन विजडम के बियॉन्ड है, उनके परे, हमारे दिमाग के परे हैं ये सारी चीजें। हम नहीं सोच सकते इतना ज्यादा, इतना हमें क्या पता कि कौन मिलेगा, कैसे करेगा। बट हम अपने गोल के बारे में, बस अपने गोल को ना, बस अपने दिमाग में होल्ड करके रखो, दैट दिस इज वेयर आई वांट टू रीच। इनको बहुत क्लियर था कि एलए इज वेयर आई वांट टू रीच, और फाइनली ये पहुंचे वहां पे। फिर उन्होंने लास्ट 2 लाइन्स में लिखा है, आई विल नेवर सीज टू मार्वल एट द वंडर्स ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, ट्रूली इट हैज वेज वी नो नॉट ऑफ। हमको पता भी नहीं है कि उसमें कितनी पावर है, और हम सोच भी नहीं सकते। दैट इज व्हाट। ओके, सो नाउ वी रीड द नेक्स्ट दिस थिंग। हाँ जी। How archaeologists and paleontologists reconstruct ancient scenes. These scientists know that their subconscious mind has a memory of everything that has ever transpired. As they study the ancient ruins and fossils through their imaginative perception, their subconscious mind aids them in reconstructing the ancient scenes. The dead past becomes alive and audible once more. Looking at these ancient temples and studying the pottery, statuary, tools, and household utensils of these ancient times, the scientist tells us of an age when there was no language. Communication was done by grunts, groans, and signs. The keen concentration and disciplined imagination of the time scientist awakens the latent power of his subconscious mind, enabling him to clothe the ancient temples
with roofs and surround them with gardens, pools, and fountains. The fossil remains are clothed with eyes, sinews, and muscles, and they again walk and talk. The past becomes the living present. And we find that in mind there is no time or space. Through discipline, control, and directed imagination, you can be a companion of the most scientific and inspired thinkers of all time. Yeah, so thank you, Poonam. I think itna hi hum pad payenge. It's 7:01 today. Thank you for reading so beautifully. So it says that जो fossil और archaeologists थे, कैसे आपको अपने उसमें सक्सेस, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो एंशियंट सिविलाइजेशंस को डिग आउट करते हैं. आई थिंक somebody is on unmute. Can you please mute? सो हम एंशियंट सिविलाइजेशंस को एस्केवेट करना, उनको ढूंढना उनका काम होता है. ठीक है. और जो फॉसिल्स होते हैं, जो बहुत साल पहले डायनासोर को हमने कैसे, उसके फॉसिल्स ही मिले थे ना, उस पे इम्प्रिंट्स थे. तो इस तरह हमको पता लगता है कि एंशियंट और आर्कियोलॉजिस्ट को तो प्रोफेशन ही है, उसको पुरानी चीजें निकालनी है, तो वो उसको लाइफ देते थे. मतलब आर्कियोलॉजिस्ट अपने सबकॉन्शियस माइंड में, इमेजिनेशन में देखते थे कि वो पूरी सिविलाइजेशन, हमको सबको पता है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोहेंजोदारो, ये सब हमने हिस्ट्री में पढ़ी थी. ये सब एंशिएंट सिविलाइजेशन थी. इनके बर्तन मिले टूटे फूटे से, शिव जी की मूर्तियां मिली हैं. मतलब ये गॉड वर्शिप करते थे. तो पता लगा किस तरह से इनके वेपन्स बहुत ज्यादा थे एनिमल्स को किल करने में. तो उस पता लगा कि अच्छा, इनका मेन फूड आई थिंक हंटिंग होगा, तभी सारे एनिमल्स वाले वेपन थे. तो इस तरह से बहुत सारे, फिर उनके स्केलेटन्स मिले, उससे पता लगा कि इनका हाइट कितनी होती थी, लाइक बहुत लंबे चौड़े होते थे. तो ये एक्सकवेशन में मिले ना, खुदाई में बोलते हैं. सो ये उनका काम होता है. तो उन्होंने कैसे अपने जॉब में सक्सेस, अब देखो, अगर आप आर्कियोलॉजिस्ट हो, आपको क्या पता कहाँ पे डिगिंग करनी है जाके, नहीं पता ना. अब आपका वर्क सक्सेस कैसे होगा? अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपको अपने काम में आगे कैसे बढ़ना है, कहाँ पे? आपको हंचेस चाहिए ना, आपको इंस्पिरेशन चाहिए कि आपके अंदर ऐसे वाले थॉट्स आए कि आपको वहां जाके डिग करना है. तो उन्होंने पूरे मन में, इमेजिनेशन में लाइफ देते थे उस पूरे सिविलाइजेशन को, कि वो इस तरह से बात करें. क्योंकि लैंग्वेज पता नहीं थी, तो वो ये सोच रहे थे कि वो ग्रंटिंग करके बात करते थे, एक दूसरे से विस्परिंग करके बात करते थे, सब इधर उधर घूम रहे होते थे. इस तरह से उन्होंने उन डेड सिविलाइजेशंस को लाइफ दी, और किस तरह उन्होंने सक्सेस पाया. सो ये भी उनका अजीब सा डिफरेंट तरीका, बट इमेजिनेशन से उन्होंने उसको हकीकत बनाया. So whatever you imagine, you will see it happening in your life, and that's the whole crux of everything. So what you hold in your head is what you hold in your hand, and thoughts become things. That's why repeatedly we have been studying that your thoughts and emotions are the creators. Okay, they are the real gods. So your thoughts and emotions, you need to harness control over and be controlled about them when it comes to thoughts and emotions. यानी कि आपकी सोच, आपके विचार और आपके इमोशंस को आप कंट्रोल करके रखो. वो ही चीजें दिमाग में उतरने दो जो आपको हकीकत में देखना है. If you don't want to see something happening in your life, in physicality of it, don't immediately erase कर दो. Lifeline. Thank you for my perfect relationship. Thank you for all the money that I have in my bank account. Thank you that I receive life in abundance with ease and effortlessness. Immediately आपका जो self talk है, आप उसको change करो. If you want to fake it, you can fake it. Who cares? After all, it's your life, right? आपको अच्छा करना है ना. वो फेक वाली चीजें सब हकीकत में बन जाती हैं. इतने इंटरव्यूज हमने देखे हैं. हमने फ्रीदा पिंटो का देखा है कि किस तरह से she's not very good looking, or conventionally good looking. She's not very conventionally good looking. लेकिन उनको ये था कि उनको ऑस्कर अवार्ड जीतना था. और she was very very young, I think 20-year-old, जब उनको स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला था उस उम्र में. ठीक है. और वो एक्सेप्टेंस स्पीच बचपन से बोलती थी. उनकी फ्रेंड का, मैं बहन का इंटरव्यू देख रही थी, कहती है बचपन से शीशे में देख के एक्सेप्टेंस स्पीच बोल रही थी, ये ऑस्कर की एक्सेप्टेंस स्पीच.
that thank you everybody, I would really like to thank my family and my directors and my this and that. वो बचपन से देख रही थी, बचपन से बोल रही थी, finally उसको इतनी कम उम्र में ऑस्कर अवार्ड मिला. There's so many people जो इतने साल काम करके भी ऑस्कर अवार्ड नॉमिनी भी नहीं बनते हैं, अवार्ड मिलना तो बहुत दूर की बात है. बट इसीलिए जो whatever you hold in your head, you're going to hold in your hand. Always remember this, and let us all together see, for all of us it's going to be a feat, it's going to be an adventure, to use our subconscious mind more and more. But let's use it now. ठीक है, हमने अपने लाइफ में हमको अलग अलग तरह के चैलेंजेस हैं. कुछ लोगों का कुछ है, कुछ लोगों का कुछ है, कुछ का मनी है, कुछ का रिलेशनशिप है, कुछ का बिजनेस है, कुछ को आइडेंटिटी नहीं मिल रही है और वो लॉस्ट फील कर रहे हैं दुनिया में. कुछ लोगों के फैमिलीज में बहुत कलेश चलते हैं, कुछ लोगों का प्रॉपर्टी फंसी हुई है, कुछ लोगों का बिजनेस नहीं चल रहा है. हम सब ने, और या हम अंदर से खुश नहीं है. कुछ लोगों का हेल्थ का चैलेंज चल रहा है ना. कुछ लोगों को लग रहा है कि हमारी उम्र बढ़ती जा रही है और ये है. नथिंग, आप अपनी एंटी एजिंग करो, रिवर्स करो. आई मीन लाइक इट्स वेरी इजी, राइट. देयर इज एज इज एक्चुअली जस्ट अ नंबर. मैंने आपको साइंटिफिकली पहले भी समझाया है कि बायोलॉजिकल एज और क्रोनोलॉजिकल एज में फर्क होता है. क्रोनोलॉजिकल एज आप जितने साल के हो, सपोज 68 इयर्स के हो, वो क्रोनोलॉजिकल एज है. इररेलेवेंट, वी डोंट इवन सी दीज डेज. ठीक है, व्हाट्स रेलेवेंट इज आपकी बायोलॉजिकल एज कितनी है, अंदर से आपकी बॉडी कितने साल की है. ठीक है, वो आप हासिल कर सकते हो पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड से. सो लीड अ ब्यूटीफुल लाइफ, एंड बिकॉज you're born to lead an amazing life, epic life in Benjamin Massaro's words, and that's how it is, and that's how we should be going forward. हम बहुत परेशान होते हैं छोटी छोटी चीजों को लेके. मैं मोटी हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं पतली हूँ, मैं फला, like हर तरह की चीज हमारे. But that's okay, change it. Put, hold that image in your head, no, where you want to go. I mean, like in one word, be solution oriented, don't be problem oriented. प्रॉब्लम को एनर्जी डालोगे, प्रॉब्लम बढ़ेगी 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 और बड़ी होती जाएगी, एंड देन यू लॉस्ट, राइट. इससे अच्छा सोल्यूशन ओरिएंटेड बनो. ये करना है, वो करना है, मैं ऐसी लगूंगी, वाओ ये ड्रेस, वहां घूमने जाऊंगी, इतना पैसा मेरे पास आएगा तो मैं ये करूंगी, ये करूंगी, ये करूंगी, ये करूंगी. दिस इज हाउ लाइफ इज गोइंग टू बी. लाइफ विल लुक लाइक दैट. इन माई ब्यूटिफुल कार इट्स गोइंग टू, मेरी हेल्थ इतनी अच्छी हो जाएगी. All the clothes will look so nice on me, when I reach my goal of whatever kgs you want to become, whatever pounds you want to lose. That way, think more about that. अपनी strong identity, आप stage पे खड़े हो, आप acceptance speech दे रहे हो, आपको awards मिल रहे हैं. ठीक है, ये सब हमको पता है ना कि इसी तरीके से होता है. Words have got a power as well. So when you use your words, you have to be very careful about using them. Okay, so whenever you words, whatever words, so use the words like wow, amazing, brilliant, magnificent, majestic, phenomenal, really nice, getting better and better. अगर आपको अपने उसमें आ रहा है that thank you for my perfect body weight of 54 kgs में बोलने में आपको लग रहा है क्योंकि आप अभी उससे 20 किलो ज्यादा हो, मे बी 30 kgs ज्यादा हो. ठीक है, अगर आपको ये लग रहा है बोलने में कि नहीं, आई एम नॉट 54 kgs, मैं कैसे बोल दूंगी थैंक यू फॉर माई परफेक्ट बॉडी वेट. सो आप अपना चेंज कर दो सेंटेंस, आप ये बोलना शुरू कर दो that gradually, by day and night, I'm losing my weight and I'm getting slimmer and more fitter. Similar, तो अब ये तो आपने जर्नी को वो कर दिया है that I'm getting fitter and slimmer and I'm looking so good and I'm so happy about it. So आपने चेंज कर दिया क्योंकि बॉडी फैट आप 54 kg से आपको रेजिस्टेंस आ रहा था, ब्लॉक आ रहा था, तो अब आपने अपने सेंटेंस को रिफ्रेम कर दिया that I'm getting better and better, है ना. अब जैसे I am the best नहीं बोल सकते, आप बोलो every day I'm getting better and better, So this is what, अगर आपको sales figure चाहिए, so by day and night my sales figures are increasing and I'm receiving a lot of money from different parts of the world in different currencies. So this is how you can auto suggest, like आपके repeated thoughts और आप imagination, जो images आप दिमाग में hold कर रहे हो, ठीक है, उनमें वो आपके guiding post है. ठीक है, वो आपकी जिंदगी को define कर रहे हैं. तो आप अपना गाइड पोस्ट आप खुद होते हो. आपको खुशी कोई बाहर से नहीं देता है, आप अपनी खुशी खुद जनरेट करते हो. इसीलिए ये बोलना ये ऐसे करती है, वो ऐसे नहीं करती है, इसकी ये कैपेबिलिटी है, वो इसका है, हम क्यों अटेंशन डालें किसी और पे. ठीक है, आप अपनी लाइफ लीड करो ना, आपको जैसे चाहिए. अब जिस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए वो भी तो आप क्रिएट कर सकते हो, है ना. सो इस तरह से आप करते रहो. अब देखो, इन्होंने भी तो, ये जो रिसर्चर थे जो रशियन कैंप में थे, इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को वाइफ में मैनिफेस्ट किया ना. इन्होंने गर्लफ्रेंड मैनिफेस्ट करी,
कहाँ वो बर्लिन में रहती थी, ये अमेरिका में रहना चाहते थे, अभी ये बंदी थे, अपनी गर्लफ्रेंड से बात भी नहीं कर पा रहे थे, उसको पता भी नहीं था कि जिंदा वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, फोन नहीं होता था उस वक्त, मोबाइल नहीं होता था, ठीक है, और उनका ड्रीम थी कि वो एलए में उसके साथ में रहेंगे। तो उन्होंने कितनी आराम से उसको मैनिफेस्ट किया ना, अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज करके, है ना। तो उसको भी उन्होंने अपना बना लिया, उसको उससे शादी की, उसके साथ फिर रहे, और इसीलिए ब्रैकेट में लिखा हुआ था माई गर्ल देन गर्लफ्रेंड नाउ माई वाइफ, है ना, क्योंकि इमेजिनेशन तक तो वो गर्लफ्रेंड थी और वो भी पता नहीं था कि पता नहीं वो भी कहाँ है, जिंदा है नहीं है, बिकॉज वॉर जोन में तो पता ही नहीं होता ना कल का क्या होगा, but he could just do it. So his imagination kept her also alive, isn't it? Because she was alive in his head because he wanted to live with her only in LA. That was very very clear. तो इस तरह से सब ठीक ठाक रहा, और इस तरह हम भी अपने इमेजिनेशन को यूज करके we can create the life that we want, है ना। So इसीलिए my only intention is that we all realize our power, because we always say मेरी बीवी बेकार है, मुझे टाइम नहीं देती है, मेरा पति बेकार है, मुझे टाइम नहीं देता, मेरा ये हाइजीनिक नहीं है, वो हाइजीनिक नहीं है, बच्चे पढ़ाई नहीं करते, हम इन पचड़ों में पड़े रहते हैं। इस तरह से वो एनर्जी की वजह से हमारी लाइफ, तो आप अपना चुप रहो यार, मस्त रहो। बच्चों के लिए आप, मैंने बताया ही था that they are very responsible and they love everyone and you know like that when they're very happy and responsible, आप ये वर्ड उनके साथ अटैच कर दो, वो अटैच हो जाएगा, वो वर्ड उनके साथ चिपकू हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल एंड हैप्पी, उसके अंडर में सब आ जाता है। Happiness word is physically, mentally, emotionally, socially, every which way. Responsible, they're responsible in their studies, they're responsible as a child, they're responsible as a grandchild, they're responsible as a friend, they're responsible to choose their friends, they're responsible when they're doing something, conducting themselves in a social way, they're responsible there. So responsible is a very high, it's an umbrella word, right? So that under that umbrella are all the areas where they are responsible. So when you feel somebody is irresponsible, you just keep thinking that, wow, this person is so responsible. Give that energy there, because it's all energy game at the end of it. Okay. Your self-talk, your energy, and your imagination. Okay. This is what is determining our life on a minute basis. And now we can change it. So that's all for today. Thank you so much to each of you for waking up on a Sunday morning and kind of listening. Yes, Ritu, your hand is raised. We want to listen to you. Good morning. Good morning. All of you. मैम, एक्चुअली आप सब ने जो मेरे लिए इतनी सारी विशेष की थी, प्रेयर्स की थी फ्रॉम द 31st of May, मैं इतने टाइम से नहीं उनको ढंग से देख भी नहीं पा रही थी, तो लास्ट नाइट मैंने देखा उनको अच्छे से, एक एक वर्ड रीड किया, तो मतलब मेरा जो ग्रेटिट्यूड निकला है वो एक पोएट्री के फॉर्म में निकला है। तो मैं बस वही शेयर करना चाहती हूँ। आज मैंने इसको टाइटल भी दिया है, असर दुआओं का पार्ट 1। क्या दोबारा क्या टाइटल है? असर दुआओं का। अच्छा, असर दुआओं का। अच्छा, द पावर ऑफ ब्लेसिंग्स। यस। शुक्रिया 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 शुक्रिया, हर एक हाथ जो उठा मेरी दुआओं के लिए, हर एक लफ्ज जो निकला मेरी दुआओं के लिए, हर एक शब्द जो लिखा गया मेरी दुआओं के लिए, हर एक वाक्य जो लिखा गया मेरी दुआओं के लिए, सभी की प्रार्थनाओं के लिए शुक्रिया, सभी की मन्नतों के लिए शुक्रिया, सभी की स्नेह से भरी दुआओं के लिए शुक्रिया, सभी की अपनेपन से भरी प्रार्थनाओं के लिए शुक्रिया। दिन रात जो मेरे लिए आप सभी ने मंत्र जाप किया, किसी ने पर्सनल तो किसी ने ग्रुप्स में मेरे लिए जाप किया, वो जब मेरे लिए निरंतर मंत्र जब आप लोग कर रहे थे, तभी तो मेरी बॉडी के सभी सेल्स फूलों की तरह खिल रहे थे। परिवार, दोस्त, रिश्तेदार सभी हैरान थे, उन्हें लगा कि मैं सदमे में हूँ, वो परेशान थे। मेरा एटीट्यूड उन्हें समझ नहीं आ रहा था, मैं ग्रेटिट्यूड की किसी जर्नी में कोई समझ नहीं पा रहा था। सभी को लग रहा था कि कैसी बहकी बातें कर रही है, सिर्फ शुक्रिया कहने से ही ये कैंसर को भी नॉर्मल कैसे समझ रही है। लोगों को पता चला तो वो रो रहे थे और मुझे सभी को काउंसलिंग के सेशंस देने पड़ रहे थे। फिर धीरे धीरे सब मुस्कुराने लगे, मेरी पावर को देखकर आपस में फुसफुसाने लगे। मैं हॉस्पिटल में भी कंटिन्यूसली सेशंस अटेंड कर रही थी। सुबह सवेरे उठकर
अपनी ब्लेसिंग्स अपने जर्नल में लिख रही थी। अपना मैजिक रोप भी अपने साथ लेकर गई थी। आखिरकार इसमें भी तो ग्रेटिट्यूड की भरी हुई एनर्जी थी। सर्जरी के दिन भी मैंने सेशन अटेंड किया। आप सभी की सुंदर मुस्कुराती हुई शक्लें देखी और खुद को और ज्यादा पावरफुल महसूस किया। सर्जरी से पहले मैंने रोज की तरह ही ग्रेटिट्यूड बात किया। अपने रिमूव होने वाले खास हिस्से को भी खूब सारा प्यार व शुक्राना दिया। वर्बली मैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहती रही। वर्बली मैं ब्लेस टू ऑल ब्लेस टू ऑल ब्लेस टू ऑल कहती रही। हॉस्पिटल की लैंड से लेकर उसे बनाने वाली लेबर तक, हॉस्पिटल की रिसेप्शन से लेकर लैब ऑपरेशन थिएटर तक, रेत के एक एक कण से लेकर हर एक ईंट तक, 5 एलिमेंट से लेकर पूरी गैलेक्सी तक, सिक्योरिटी स्टाफ, पार्किंग स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ सभी का शुक्रिया किया। डॉक्टर्स, सर्जन्स, डाइटिशियंस, किचन स्टाफ सबका शुक्रिया किया। कैनुला, ड्रिप, मेडिसिन, सॉल्ट, इंजेक्शंस, कंपनीज सभी का शुक्रिया किया। सभी टूल्स, इक्विपमेंट्स, नेबुलाइजर एटसेट्रा का जिसने भी आविष्कार है किया, सभी का शुक्रिया किया। मेरे मेडिकल एडवाइजर, टीपीए, हर एक पर्सन और उसकी फैमिली का शुक्रिया किया। जिसका जो भी कंट्रीब्यूशन रहा हॉस्पिटल को सक्सेसफुली चलाने के लिए, सभी का शुक्रिया किया। हॉस्पिटल की वैन, व्हीलचेयर, स्ट्रेचर सभी का शुक्रिया किया। लाइट्स, एसी, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, इंजीनियर्स सभी का शुक्रिया किया। ब्लेस टू ऑल, थैंक यू बोलती हुई ऑपरेशन थिएटर में गई थी। ब्लेस टू ऑल और थैंक यू बोलती हुई ही ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई थी। ऑपरेशन थिएटर में भी मेरे जोक सुनकर पूरी सर्जरी टीम हैरान थी और मैं बहुत खुश थी, उड़ रही आसमान में थी। आप सभी ने जो मुझे दिल खोलकर दुआएं दी थी, ये सब उन्हीं दुआओं का असर था। मैंने जो भी जितना भी सीखा दीप्ति मैम और आप सब से, ये सब उन्हीं लर्निंग्स का असर था। हम सभी अनजान होते हुए भी 573 मेंबर्स वाली फैमिली का हिस्सेदार हैं। कोई रिश्ता ना होते हुए भी हम सभी यहाँ रिश्तेदार हैं। असर दुआओं का आप सभी की रंग मुझ पे खुशियों वाला पक्का लाया। आप सभी की दुआओं ने मुझ में एक जोश जगाया। मैं सर्जरी से पहले भी और सर्जरी के बाद भी सभी को अपने इन मॉर्निंग सेशंस के बारे में कॉन्टिन्यूसली बता रही थी, मगर लोग समझ नहीं पाए कि उन्हें मैं मैजिक की किस दुनिया में ले जा रही थी। लेकिन मैंने यूनिवर्स के इस टेस्ट को फुली एंजॉय किया और लाइफ का इतना बड़ा एग्जाम 100% मार्क्स से पहली बार पास किया। मैं कुछ भी नहीं थी आप सभी की दुआओं के बिना। आप सब हैं मेरे खूबसूरत गहनों के बेशकीमती नगीना। किसी ने पूछा मुझसे दुआओं का मतलब है क्या? किसी ने पूछा मुझसे दुआओं का मतलब है क्या? और मैंने हमारे इस ग्रुप का नाम बता दिया। आप सबके इतने सारे लाड, प्यार, सम्मान, कॉम्प्लीमेंट्स ने मुझे पुनः पुलकित कर दिया। मुझ में इंद्रधनुष के रंग, फूलों की खुशबू, चिड़ियों की चहक भरने के लिए शुक्रिया। मेरी प्यारी सहेली सोनाली, जिसने मुझे दीप्ति मैम से मिलवाया, उसका भी शुक्रिया। मेरे परम पिता परमात्मा और माता रानी का शुक्रिया 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 शुक्रिया। वाह, कमाल है रितु। मतलब किसी ने अपना एक्सपीरियंस, तुमने पूरी जर्नी का, हम सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, दैट हाउ वी यूज ग्रेटिट्यूड टू ट्रांसफॉर्म सर्टेन थिंग्स इन आवर लाइफ। सो यू हैव डन दैट इन द फॉर्म ऑफ पोएट्री। तो सब पूरा एक्सपीरियंस था कि आप कैसे हॉस्पिटल में घुसे, डायग्नोसिस से आपके पूरे 100% क्योर तक, यू नो, सो विच इज सो ब्यूटीफुल। यू आर तो ट्रूली मैजिकल रितु, तुसी कमाल हो। यस, तो सच में मतलब क्या कहूँ आपके लिए कि आप इतना ज्यादा ग्रेटिट्यूड सबके ब्लेसिंग्स के लिए, सबके आशीर्वाद के लिए आपने जो लिखा ना, इट इज मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड। बहुत अच्छा। गॉड ब्लेस यू। Thank you so much. Very beautiful, Ritu. Yeah, most beautiful. Even for the hospital, you have written each and everything. Very nice.